Hare Krishna. Is my voice clear? Okay, I request everyone to please on your cameras. It is learning class, so it is better, so we can make nice, better interaction. So how's your weekends? How your week? We are meeting after a week. It's better to on your cameras, and if you can open your mics as well as, because if just I will just speak, so I just feel like that I am in this meeting and I am teaching myself, so it will be better for everyone. If you're doing something of your in this, if you're somewhere else, you can skip, but if you're at your home, you can open your cameras. Okay, so we'll start with the prayers. I will start. ओम अज्ञातवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथं तं संजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Nitya Namine, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine, Vishnavadi Pashati Deshatarine, Vishnu Prabhupada ki Jai. Once again, I'm requesting everyone to please on your cameras. Okay, if I'm not able to see your hand movements, your playing things, then I'm not able to rectify your mistakes. Okay, so in previous sessions, what we have learned, anyone wants to relate that? Anyone remember what you have learned in previous session? Hare Krishna Mataji. Yes, we learned in the previous sessions that kartal or any musical instrument known as resonant instrument is a kartal, and we started learning with the basic exercise of learning how to hold the kartal properly in first 90 seconds, and then it should be tilted to 45 degrees. Then we learn one beat, 3 beats of kartal. First two is slow and with low vibration, and the third one is with high vibration, loud Okay, sound. thanks so much. Anyone else want to Hare Krishna Mataji. share any points? Okay, so in previous sessions, we have just completed 2 sessions, and in that session, in first session, our main motive or the main thing is we have learned what is kartal, how we have to hold kartal, and we have learned first beat, that is slow beat, and that has three things: first, second, third. It's called as a variation. First, second, third. First and second will be same. Minimum sound, minimum vibration, and third will be maximum sound and maximum vibration. And I have in second session we have mostly have known about the metronome app, and how can we practice metronome app with the metronome app, and we can take help with that by replacing our mouth 1 2 3 1 2 3. We can play in the metronome app. So we have done 2 sessions. Today is our third session, and I don't know how much you have practiced, at what level you are at. So for that, after this session, just record a video, 1-minute video, and try to play that slow beat, whatever you learned. Okay, it will be 10 second, 20 second, it will be depends on you, but at least you have to play the slow beat on by your own, so I got to know that how it's going. Okay, everyone clear? So I will be waiting for your videos after this session. Okay, so I am believing that you know this first beat, you have practiced the first beat, slow beat, and you are become the at least you know the basic things of slow beat. And today we will learn two things. The first thing is the second variation of slow beat. Maybe I will just make sure that everyone has their own styles. Okay, you have seen in many kirtans just a minute, that there are so many people using their styles, using their own styles by their own style of holding kartal, by own style of playing kartals. So first you have to learn this like should be like this, and the second variation should be like
The sound will be same, the beat will be same, but just we move our hands for our betterment. उससे क्या होगा, इससे हमारे जो हैंड्स है उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा. और जो सेकंड पोजीशन आपको बता रहा हूँ, जो सेकंड वेरिएशन आपको बता रहा हूँ अभी, वो मेनली स्लो कीर्तन में मेलोडी के साथ, और जब कम कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज होते हैं, जब कम डिवोटीज होते हैं, जब सिर्फ हमको ही कीर्तन करना होता है, तब वो बीट बज जाती है, तब वो वेरिएशन है, तब वो मूवमेंट करा जाता है. उससे हाथ में जो पावर है या हाथ की जो मूवमेंट है वो कम होती है, और उससे एक हाथ को हमारा रेस्ट मिलता है. सो हमारा जो नॉन लीडिंग हैंड है, ये है लीडिंग हैंड, जिससे आप प्ले करते हैं, और ये हमारा नॉन लीडिंग हैंड जिसको सिर्फ मूवमेंट होता है. इससे इससे प्रॉपरली इससे बीट नहीं बजती है. बीट हमारी हमेशा लीडिंग हैंड के द्वारा ही बजती है. तो सेकंड वेरिएशन में जो नॉन लीडिंग हैंड है, इट विल जस्ट बी द स्टे. ठीक है, उसका कुछ भी महत्व नहीं रहेगा सेकंड वेरिएशन में, वो सिर्फ एक जगह रहेगा. बाकी जो सेकंड जो हमारा लीडिंग हैंड है, वो ही सारा काम करेगा उसमें. कैसे करेगा आपको बताता हूँ, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ठीक है, ये आप देखो, ये सिर्फ इसका मतलब सिर्फ मूवमेंट ऐसा होता है. ठीक है, जब हम स्लो बीट बजाते हैं, बट सेकंड वेरिएशन में इसका मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा. जैसे ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा अभी. ठीक है, ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, अभी ये साइड मुड़ जाएगा. ठीक है, इस साइड मुड़ जाएगा, और ये ऐसा ही रहेगा. मैं आपको प्ले करके बताता हूँ. पहले 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. इससे क्या होगा, इससे जो आपका राइट हैंड है सिर्फ वही मूव करेगा, ये सिर्फ एक जगह स्टिर है. ठीक है, इसका कुछ भी मतलब उपयोग नहीं आएगा इसमें सेकंड वेरिएशन में. ठीक है, सेकंड वेरिएशन में सिर्फ आपका राइट हैंड, जो आपका लीडिंग हैंड है, वही चलेगा. लीडिंग हैंड कैसे चलेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कि दोनों में ना, दोनों अलग अलग टाइम पे काम आएंगे. ये हमारी फर्स्ट बीट है 1 2 3, 1 2 3, ये मोस्टली कीर्तन में बजती है. ठीक है, जो बड़ा कीर्तन होता है, कीर्तन मेला होता है, या हम टेम्पल में कीर्तन कर रहे हैं, या हम खुद भी कीर्तन करते हैं, हम इसको बजाते हैं. बट जब छोटा कॉन्ग्रीगेशन होता है, जब सिर्फ छोटे छोटे मतलब सिर्फ कम डिवोटीज होते हैं, हमको बहुत देर तक कीर्तन करना है, जैसे जैसे एकादशी के टाइम पे देयर आर सम स्लॉट्स. हर टेम्पल में हर हर व्यक्ति को स्लॉट्स मिलते हैं, क्योंकि एकादशी के टाइम पे 24/7 24/1 कीर्तन चलता है, मतलब 24 आवर्स कीर्तन चल रहा है. उसमें हर व्यक्ति को 1 घंटा स्लॉट मिलता है. तो उसमें वो सिर्फ ऐसा नहीं बजा सकते, क्योंकि ऐसे बजाएंगे तो उनके हाथ दर्द करने लग जाएंगे 10-15 मिनट में. तो दे शिफ्टेड टू दिस, ये ऐसे बजाते हैं. फिर उससे होता है कीर्तन चलता भी रहता है, और कीर्तन लंबा होता है, ताकि हाथ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो हाथ में दर्द नहीं. ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इसमें हमारा राइट हैंड जो कर रहा है वही करेगा, बट लेफ्ट हैंड सिर्फ थोड़ा सा मूव हो जाएगा, और ये राइट हैंड ऐसा हो जाएगा. और लेफ्ट हैंड का इसमें कुछ भी काम नहीं है, लेफ्ट हैंड ऐसा ही रहेगा, ऐसा है तो पोजिशन में. राइट हैंड 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, ये स्लो बीट है, ये सिर्फ सेकंड वेरिएशन है. ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन इज 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. सेकंड वेरिएशन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन सेकंड वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन सेकंड वेरिएशन सेम है, जस्ट मूवमेंट ऑफ हैंड थोड़ा कम है सेकंड वेरिएशन में. सिर्फ हमारा लीडिंग हैंड ही मूव करेगा, और वो भी धीरे धीरे. जैसे हम फर्स्ट बीट में क्या है, फर्स्ट वेरिएशन में क्या था, हम दोनों को साउंड को थोड़ा अच्छा बजा रहे थे, ताकि सबको सुनाई दे. अब जब सेकंड बजा रहे हैं, उसमें थोड़ा स्लो बजाएंगे, और हमारा हैंड का जो मूवमेंट है वो भी धीरे चलेगा, बट वाइब्रेशन है और जो चीज़ें हैं वो सब कुछ सिमिलर रहेगी फर्स्ट के जैसा, बट थोड़ा साउंड और थोड़ा हैंड मूवमेंट चेंज होगा. दैट्स इट फॉर योर बेटरमेंट. ठीक है, ताकि आपका धीरे तक चले कीर्तन. ये समझ में आ सबको? एनीवन हैज एनी डाउट इन सेकंड वेरिएशन? प्रभु जी, जब राइट हैंड से प्रेस करना है थर्ड वाइब्रेशन के लिए, तब उसको ऊपर से ऐसे करना है या नीचे से, जैसे पहले कर रहे थे फर्स्ट बीट में? सेम रहेगा सब कुछ, सिर्फ हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड का मूवमेंट चेंज किया. दैट्स इट. लेफ्ट हैंड का हमने मूवमेंट कम कर दिया बस. तो अंदर की तरह इनवर्ड बेंड होगा, राइट? हाँ ओके, एंड डाउन ऐसे जब नीचे हो रहा था वैसे ही होगा. हाँ, साउंड वैसे ही रहेगा, मूवमेंट वैसे ही रहेगा. सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड का जो थिंग थी
जब हम लेफ्ट हैंड का थंब हटा रहे थे फर्स्ट बीट में, फर्स्ट वेरिएशन में, और हम नहीं हटाए तो चलेगा, हटाए तो भी चलेगा, ठीक है, साउंड एक ही आएगा। ओके। और 45 डिग्री में बेंड करके बजा सकते हैं। 45 डिग्री तो रहेगा ही, आप कोई सी बीट बजाओ, स्लो बीट, फास्ट बीट, मीडियम बीट, वो सिर्फ वो तो 45 डिग्री पे ही रहेगा, क्योंकि हमें लीडिंग हैंड को मूवमेंट चाहिए, लीडिंग हैंड हमारा हर चीज नहीं कर सकता, ये 45 डिग्री पे ही बैंड रहेगा, वो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कुछ नहीं हो, ये 45 डिग्री ओके पे ही रहेगा, ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनीवन हेल्स, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो आई एम होपिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको, जितने भी लोग हैं उन सबको स्लो बीट अच्छे से बजाना आ गई है, आप उसको अच्छे से बजा सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ, अब जब वीडियोस आएगी तब मुझे पता लगेगा कि क्या गलती कर रहा है, सब सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं सेकेंड बीट पे, दैट इज फास्ट बीट, ठीक है। ये बहुत क्रूशियल होगी बीट, ये इट विल टेक एटलीस्ट, इट विल टेक मोर देन 50 आवर्स, more than 50 hours. I am repeating again, it will take more than 50 घंटे से भी ज़्यादा की प्रैक्टिस ये बीट मांगेगी आपसे, तब जाके आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे, ठीक है। मूवमेंट हमने जैसे हमने जो करताल होल्ड किए थे वैसे हम होल्ड करना है करताल, ठीक है। स्लो बीट हो, फास्ट बीट हो, कोई सी बीट हो, करताल वैसे ही होल्ड करना है, इस जो फिंगर का जो ये है हमारा जो लाइन इसके ऊपर, ठीक है। अपने करताल होल्ड कर लीजिए, then we will move to fast beat. और आपको मैं अभी वापस बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आर कॉन्शियसनेस और एटीट्यूड ऑफ लर्निंग टुवर्ड इंस्ट्रूमेंट इज टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। इट्स नॉट फॉर आर सेंस एंजॉयमेंट, हम ये चीज़ नहीं सीख रहे ताकि हम खुद का मनोरंजन कर पाए, ताकि हम दूसरों का मनोरंजन कर पाए, हम ये भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान का मनोरंजन करने के लिए हम ये सीख रहे हैं, हमारा ये मोटिव हमेशा से होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ मिनिमम टाइम बताया कि 50 घंटे लगेंगे इसको बीट को सीखने में, ठीक है। अगर आपका कॉन्शियस और अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप शायद आप और जल्दी सीखते हैं, ठीक है। थर्ड बीट क्या है, थर्ड बीट क्या, सॉरी सेकेंड बीट जो है फास्ट बीट, ठीक है। इसका नाम तो फास्ट बीट है, हम पर हमको चालू करना है स्लो से, हम जैसे हमने फर्स्ट बीट बताई थी वो तो वो स्लो थी, इसलिए हम स्लो से चालू कर दी, बट ये फास्ट बीट है, ये फास्ट बजेगी बट हमको चालू स्लो से ही करना है, ठीक है। अब इसमें पूरा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, हमने जो स्लो बीट बताया था 1 2 था, वो मिनिमम वाइब्रेशन था, लेस साउंड था, बट फास्ट बीट में क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा साउंड है वो एकदम मैक्सिमम वाइब्रेशन है, मैक्सिमम साउंड, और जो थर्ड है वो मिनिमम साउंड है, मिनिमम वाइब्रेशन थर्ड में, मेक इट नोट डाउन, ठीक है। फास्ट बीट में पूरा अपोजिट हो जाएगा, जो हमारा 1 2 स्लो बज रहा था स्लो बीट में, वो फास्ट बीट में एकदम फास्ट बजेगा 1 2, और जो थर्ड है जो हमारा स्लो बीट में हमारा जो बज रहा था मैक्सिमम बज रहा था, वो साउंड भी मैक्सिमम था, वाइब्रेशन भी मैक्सिमम थी, बट जो फास्ट बीट में वो मिनिमम साउंड एंड मिनिमम वाइब्रेशन हो जाएगा। मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ फास्ट बीट कैसी बजेगी, उसके भी दो वेरिएशन है, वो मैं दोनों अभी बताऊंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस किस में अच्छी लग रही है, आप किस में आप कंफर्टेबल है, में किससे कंफर्टेबल है आप उसमें बजाना, ठीक है। बट मेरा तरीका, मैं जो आपको पर्सनली बताऊंगा वो मैं खुद बजाता हूँ, इसलिए मुझे आता है वो अच्छे से, बाकी दूसरा भी आता है बट दूसरा मुझे इतना परफेक्टली नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा साउंड करेगी फास्ट बीट, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, मुझे समझ में नहीं आता पहले, ठीक है। अब चालू करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड था हमारा क्या था, मैक्सिमम साउंड मैक्सिमम वाइब्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, करताल हमने होल्ड कर रखे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होल्ड कर रखे हैं हमारे करताल। अब जो हमारा तरीका है, मैंने आपको स्लो बीट बताया, हमारी स्लो बीट ऐसी बजेगी और एक ऐसी बजेगी, ठीक है। अब फास्ट बीट में क्या है, फास्ट बीट में हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाना है, ठीक है। मैंने बजाया तो उसमें आपको पता नहीं चला होगा कि मैंने हॉरिजॉन्टल लिया वर्टिकल लिया क्या गया हूँ, वो क्योंकि तेज बज रहा था,
बट हम जब हम सीखेंगे तो हमको सीखना पड़ेगा कि क्या बजा रहे हैं। जब वर्टिकल बजाएंगे तो हम आगे पीछे करेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल बजाएंगे तब हम ऊपर नीचे करेंगे। ये ठीक है, पर साउंड सेम है दोनों का, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सीखते पहले हम, पहले वर्टिकल सीखते सॉरी हम, वर्टिकल, फिर हम हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल में हमारा हमारा ऐसे ही 45 डिग्री पे। अब हम पहले जो ये हमारा हमारा जो लीडिंग हैंड हमारा, वो उसका पीछे वाला हिस्सा वो आगे टच करेगा, पहले आगे 1, किधर आगे, इस साइड ऐसे मैंने पकड़ रखे करताल, ये आगे गया, ये जो हमारा लीडिंग हैंड है ये आगे गया, वर्टिकल में आगे गया, और इसने हिट किया पीछे से, ठीक है। अब ये पीछे आएगा वापस से, और अब ये आगे से हिट करेगा। हमारा जो नॉन लीडिंग हैंड है ये सिर्फ ऊपर नीचे सिर्फ ऐसे ऐसे होगा, बस ऐसे ऐसे। बट जो हमारा ये राइट हैंड है, जो हमारा लीडिंग हैंड है, वो आगे पीछे जाएगा, ठीक है। 1 2 3। मैं आपको साउंड बजा के नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कहाँ बजेगा वो, साउंड अलग होगा इसका। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कौन सी क्या पोजीशन अभी जाएगी, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, जो हमारा लीडिंग हैंड है वर्टिकल में, वो जो हमारा पीछे का हिस्सा है ये आगे जाएगा, और ये जब ये इधर आएगा तो ये पीछे जाएगा। 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आया समझ में? वर्टिकल मीन्स आगे पीछे होगा। अब हॉरिजॉन्टल कैसा है? हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं, ये सिर्फ ऐसा होगा 1 2 1 2। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। आया समझ में? एनी डाउट इन दिस? नहीं डाउट है, कोई बात, ठीक है। वापस से देख लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वर्टिकल इजी रहता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या थोड़ा मतलब थोड़ा उसमें हमको बजाने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब एटलीस्ट अगर आपको वर्टिकल में 50 आवर्स लग रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल में एटलीस्ट 70 to 80 आवर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर की हमको आदत नहीं है, पर हमको तो इधर की आदत पड़ जाती है, ठीक है। पर आप फिर भी आपके अपने अकोमोडेशन के हिसाब से आप सीख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल में कैसा 1 2 1 2। साउंड नहीं बजा रहा हूँ मैं अभी, मैं ऐसे आपको सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ कि करताल की पोजीशन कैसी होगी। देखो हॉरिजॉन्टल में देखो 1 2 1 2, और अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कैसी होगी 1 2 1 2। हॉरिजॉन्टल में कैसी होगी 1 2 1 2, ठीक है। मूवमेंट सेम है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब वो आपके ऊपर आप कौन सा सीखना है, पर आपको अभी से आपको सिर्फ मैंने बता दिया कि कैसा बजेगा, ठीक है, मतलब कैसा होगा पोजीशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। अब हम पूरा कॉन्सेंट्रेट वर्टिकल पे करेंगे, हॉरिजॉन्टल भूल जाओ कि हॉरिजॉन्टल ने कुछ सीखा था, ठीक है। अब वर्टिकल देखते हैं। वर्टिकल में हमारे हाथ रहेंगे, जो हमारे हाथ है ये हाथ फोल्ड, ये करताल को हमने होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब हमको बजाना कैसे है इसको, वो बहुत क्रूशियल है, तो अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, ठीक है। अब जो हमारे ये अंगूठे हैं, हमने जो फर्स्ट बीट में सीखा था 1 2 3, ये हमने सीखा था। अब ये बार बार अंगूठे हटा नहीं सकते हैं, बार बार अंगूठे हम हटा नहीं सकते। अब हटाएंगे तो ये जो करताल है ये हिलने लग जाता है, तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं करताल, ठीक है। तो हमको अपर हमारी ये तो अपोजिट बीट है, हमको उसमें 2 बार तेज साउंड बजाना है, 1 बार धीरे साउंड बजाना है। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, अगर हम अंगूठे नहीं हटाएंगे बार बार, तो ये पॉसिबल होगा हिटिंग से, ठीक है। हिट जैसा करेंगे वैसा साउंड निकलेगा, ठीक है। 1 2 3, वापस 1 2, और जो 3 है, जो बहुत कम साउंड आएगा उसमें। देखो हम स्लो बीट में ये बात है, स्लो बीट तो हम ऐसा बजाते हैं, ऐसा ऐसा, है ना। बट जो फास्ट बीट में कैसा बजेगा स्लो, वो चिपक जाएगा पूरा,
जो थर्ड वाला जो है ये सिर्फ इसमें चुप हो जाएगा, तो इसे साउंड धीरा आएगा। और अगर हम ऐसे बजाएंगे, साउंड तेज है इसमें, आया साउंड का, समझ आया डिफरेंस, समझ आया साउंड का, साउंड का समझ देखो। ये सीखना मत कि ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको साउंड के लिए बता रहा हूँ आपको सिर्फ मैं, ठीक है। ये बजाना मत आपको जो सिखा रहा हूँ, ये आपको साउंड के लिए बता रहा हूँ, साउंड कैसा आएगा डिफरेंस। वन, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, साउंड ऐसा आएगा, ठीक है। समझ आया साउंड का डिफरेंस, समझ आया मुझे, ठीक है। अब हम सीखते हैं हमको बजाना कैसे, ठीक है। मैं आपको पोजीशन बताइए, पोजीशन बताइए ना, 1 2 3, 1 2 3। आपको थोड़ा मैं टिल्ट करके बताऊंगा, पता चलेगा वो, ठीक है। ऐसे देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ठीक है, अभी हमको है ना साउंड पे नहीं जाना है, हमको अभी अभी से हमको हमारे हाथ की पोजीशन को परफेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम साउंड पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, साउंड पे बिल्कुल नहीं जाएंगे अभी हम। अगर अभी हम साउंड पे गए ना तो हमारी जो पोजीशन है वो फिर बिगड़ जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ पोजीशन देखेंगे कि पोजीशन कैसी आनी चाहिए हमारी, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। एक बात और, ऐसे अभी अभी तो आपको क्या, 1 2 3, ये तो मैं आपको सिर्फ दूर दूर करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पोजीशन कैसी है, बजेगा कैसे, ठीक है। हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे हम तेज होते जाएंगे, जैसे हमको जो हमारी हाथ की जो डिस्टेंस है उसको कम करना है, ठीक है। ये भी एक्चुअली बजता कैसे आपको वापस देखो, तो आपने देखा मैं क्या इतना बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ पास पास में पास पास में पास पास में बजा रहा हूँ उसको, उससे हो रहा है फास्ट बज रही है, साउंड परफेक्ट आ रहा है ना। तो हमको सीखना है ऐसे और बजाना है ऐसे, तो सीखते सीखते हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाएंगे कि हमको बजाना कैसे। मैंने आपको अभी पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें एटलीस्ट आपको 50 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस करो, ज़्यादा करना ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अभी हम साथ में करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, आप इस धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मैं आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं दूर दूर ले जा रहा हूँ जानबूझ के, बट आपको ट्राई करना है, अगर आपसे पास में हो रहा है पर साउंड, अभी साउंड थोड़ा छोड़ो साउंड का, बट अगर आपसे पास में तो पास में जाकर ट्राई करना, ठीक है। मैं दूर आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको साउंड बजा के दिखाया ना, मैं बजा के दिखाया कैसा बज रहा है ये, क्या मैं तो दूर दूर बजा रहा हूँ, नहीं, मैं पास पास बजा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। वापस से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो हमका हमारा जो ऐसा सा हाथ है वो धीरे धीरे राउंड हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राउंड, राउंड हो जाएगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी, हमारे हाथ की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, हम धीरे धीरे और पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे ऐसे ऐसे, इससे क्या होगा, इससे हमारा हाथ का मूवमेंट अच्छा बढ़ेगा, हमारा रिस्ट मूव होगी, हमारे हैंड मूव नहीं होंगे, हमारी रिस्ट मूव होगी इससे, और रिस्ट मूव होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। वापस, पर शुरू से हमको क्या करना है,
फिर से हमको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आया आया। ठीक है, वापस करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको आ रहा है, अगर आप सीख मतलब आपको पता लगे कि पोजीशन कैसी था, मैंने आपको बताया ऐसे कि हम ऐसे ही करेंगे क्या, अब हम राउंड में घुमाने लग जाएंगे, राउंड में घुमाने लग जाएंगे। राउंड से क्या होगा, हमारी डिस्टेंस कम होगी, हमारा रिस्ट का मूवमेंट बढ़ेगा, तो हम उससे तेज बजा पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ठीक है, 1 2 1 2 कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, पर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस परफेक्टली एंड स्लो। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, आया। अब आपने देखा होगा कि अब मैं धीरे धीरे मैं इसको ऐसे बजा के, मैं ऐसे घुमा के इसको मैं ऐसे बजा रहा हूँ। उससे क्या हो गया, मैं ना ऐसे बजाने के मेरा हाथ ऐसे पीछे चला गया, अब मैं धीरे ऊपर से निकल के मैं आगे बजा रहा हूँ, तो मेरा हाथ का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ना एक स्टेप आगे बढ़ा जा रहा हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपके हाथ में धीरे धीरे करता रहूँगा ना, तो बहुत टाइम निकल जाएगा और हमारा जो कोर्स की डेडलाइन की हमारा टाइम लाइन है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको वो खुद प्रैक्टिस करनी है, आप खुद को मुझसे पूछना पड़ेगा, प्रभु जी ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं बज रहा है ठीक से, या ये कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो तब जाके मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, और आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, तो उसको आपको एटलीस्ट हर स्टेप हर चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके उसमें परफेक्ट बन पाओगे। ठीक है, आप शुरू से 1 2 1 2 1 2 1 2। और जो हमारा जो थर्ड वाला बीट है, इसको हमको परफेक्टली एकदम सेंटर में नहीं बजाना है। ठीक है, मतलब बजाना तो सेंटर में ही है, बट हम धीरे स्लो जैसे हम आगे बढ़ाते हैं ना, तो ये कम होके ये इतना रह जाएगा, मतलब हम सिर्फ 75% कवर कर पाएंगे सर्कल का। ठीक है, तो थर्ड वाला जो हम बजा रहे हैं, अभी तो आपको पूरा सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि 1 2 3, हम जैसे आगे फास्ट बढ़ाते बजाएंगे ना, तो ये जो 100 कवर कर रहे हैं अभी हम, ये 75 ही कवर होगा फास्ट बीट में। ठीक है, वापस से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हमको तो बोलना वैसा ही है, 1 2 1 2 3, ताकि 1 2 तेज बोले और 3 थोड़ा धीरे बोले, तो उससे क्या होगा, हमको जो हमारे हैंड मूवमेंट उसको पता चलेगा कि हाँ 1 2 तेज बोल रहा है तो तेज बजाना है, 3 धीरे बोल रहा है धीरे बजाना है। ठीक है, अब से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, धीरे धीरे हमको तेज करना है इसको। ठीक है, हुआ? किसी कोई प्रश्न है, किसी कोई डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, यस मैडम। इसमें दोनों हाथ का मूवमेंट हो सकता है right? यस, दोनों हाथ का मूवमेंट है, बट हमको जो लीडिंग हैंड है हमारा वही मतलब चलेगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड जो हमारा नॉन लीडिंग हैंड है, वो सिर्फ ऊपर नीचे सिर्फ गाइडेंस देगा राइट हैंड को, हेल्प करेगा, ऐसा सपोर्ट है, क्योंकि हम एक ओके से बजा नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ ओके लेफ्ट हैंड जो हमारा नॉन लीडिंग हैंड है वो सिर्फ सपोर्ट देने के लिए। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। Anyone else? Any doubt? ओके, वापस से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और आपको एक बात अभी से बता दूं, जैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताया 50 घंटे की प्रैक्टिस एटलीस्ट चाहिए हमको। तो हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमको बोरिंग लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है सिर्फ बजाना ही तो है, कुछ ही बजा रहे, ठीक है। तो उस टाइम को क्या करना चाहिए, उस टाइम नहीं बजाने का मन है तो करताल को रख दो, ठीक है। अगर मन नहीं है फिर भी आप बजा रहे हो ना, तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपने सीखा है वो आप भूल जाओगे, क्योंकि आपका मन नहीं है बजाने का, फिर भी आप बजा रहे हो, फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। ध्यान से, शांति से बैठना है, 10 मिनट 15 मिनट जैसा जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से बजाना है, ठीक है। बट प्रैक्टिस स्लोली, हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, हमको डायरेक्टली तेज नहीं बजाना है, तेज ठीक है फास्ट बीट है, बट बजाने में हमको टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वापस से प्रैक्टिस करें थोड़ी देर के लिए हम, ठीक है। वापस से टेक योर हैंड्स, ओके, अगेन हैंड्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और यहाँ का ना फर्स्ट शीट में स्लो वीडियो बताया था कि हमारा साउंड है, हमारी हाँ हमारा जो फ्लो है वो एक ही जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1 2 3 अलग बजा रहे हैं, फिर हमने वापस 1 2 3 अलग बजाया, वापस 1 2 3 हमने टाइमिंग अलग बजाई। टाइमिंग एक होना चाहिए, फ्लो एक होना चाहिए, इसलिए हम धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर। अब ऐसे ठीक है, ये हम सीखेंगे। और ये तो अभी हम सिर्फ बीट सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब होता है ना जैसे कि हमने सब्जी बन गई है हमारी, ठीक है। पर हम देखो इवन होटल में या जब भी कोई गेस्ट आता है हमारे घर पे तो हम उसको सर्व करते हैं, तो हम सिर्फ सब्जी सर्व नहीं करते हैं, उस पर हम कुछ गार्निश करते हैं। अगर पुलाव है, अगर कुछ चावल है तो उस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स या हम कुछ भी कोरिएंडर गार्निश करेंगे, या अगर कोई सब्जी है, या अगर कुछ भी है तो हम कुछ ना कुछ गार्निश करते हैं, कुछ ना कुछ उसको सजावट करते हैं। तो अभी हम सिर्फ ऊपर की चीज़ सीख रहे हैं, अभी इसी में सब्जी बनी है, इसको गार्निश करने के लिए, इसको थोड़ा एकदम दिखाने के लिए, टेस्ट देने के लिए हम इसके लिए अलग से चीज़ सीखेंगे, उसको बोलते हैं तिहाई या अलंकार, ठीक है।
जब आप ये सीख जाओगे तो अगर उसके उसके बाद ये सीखेंगे तो वो साउंड जब करेगा ना आफ्टर योर बीट इट विल साउंड वेरी मेलोडियस। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, कल भी हम ये चीज़ नहीं, मतलब थोड़ा हम इसमें और आपको चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ मैंने अभी आपको वर्टिकल सिखाया है, कल हम हॉरिजॉन्टल सीखेंगे। अगर आपको वर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम आई तो आप हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट हो जाना। अगर आपका वर्टिकल अच्छा ठीक हो गया है तो आप वर्टिकल पे ही रहना। ठीक है, कल मैं पूछूंगा सबसे, अगर आप वर्टिकल पे अच्छा हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपका अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हॉरिजॉन्टल भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, so we will end this session here only. If anyone has any doubt, any questions regarding fast beat or regarding any slow beat, regarding anything, you can ask. और ये सारे जो सेशन हमने लिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेशन है, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं लिंक भी शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब की ग्रुप वगैरह पर। अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब देख सकते हैं, या कुछ फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, जो मेट्रोनोम ऐप है वो ठीक हो गया था मेरा, तो उसमें प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसमें जो स्पीड है कितना रखना है प्रैक्टिस के लिए, स्पीड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्पीड? यू। ठीक है, मुझे नहीं, इसलिए इसलिए मैंने आपसे आज सबसे मैंने वीडियो मांगी है, ताकि मुझे पता चल पाए कौन कितना लेवल पे है, कौन कहाँ पर है, कौन अच्छे बजा पा रहा है, कौन सही नहीं बजा पा रहा है, किसका कैसा है। उस हिसाब से हम फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है। ओके, और ठीक, अगर आप, फर्स्ट। और मतलब जो हमारी एग्जैक्ट हमारी मतलब स्पीड होनी चाहिए वो अराउंड 100 टू 120 समथिंग अराउंड होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि स्लो बीट है तो स्लो ही बजेगी। ठीक है। ओके, 120, 100 टू यस, 120। 100 टू ओके। 120। यस। और इसको प्रैक्टिस करेंगे मेट्रोनोम में, तो इसका कितना स्पीड होना चाहिए? नहीं, इसको फास्ट। मेट्रोनोम प्रैक्टिस नहीं करना है अभी। ठीक है, ये ओह, इसको अभी अच्छा आप खुद अच्छा। प्रैक्टिस करो। मेट्रोनोम में इसको प्रैक्टिस करने के लिए आई डोंट थिंक सो ये सही रहेगा, क्योंकि आपका क्या है क्या नहीं है, आप कहाँ पर पहुँचे। क्योंकि क्या है, मेट्रोनोम इसलिए ताकि आप फ्लो में आए, तो आपको पता लगे कि हाँ हमको इसी फ्लो में, इसी टाइमिंग पे, इसी समय पे बजाना है। ये क्या है, इस बीट में किसका क्या टाइमिंग है, किसका क्या स्पीड है, वो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, सबका अलग अलग चीज़ होती है। बट हम जैसे हम सीख जाएंगे तो फिर एक आपको स्पीड में बताऊंगा, उस स्पीड में फिर बजाएंगे। ठीक है। ठीक है। anyone else any doubt? No. So once again I am reminding everyone, after this session record a 30-second or 1 minute video and play slow beat with the codes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 at least 30 seconds. ठीक है, so I got to know कि आप सही बजा रहे हो, साउंड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑनलाइन क्या है, मतलब ऐप पे क्या है, कितना मतलब होता है ना कि हम वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे हैं, या हम हमारा मतलब कुछ नेट प्रॉब्लम आता है तो वीडियो कभी रुक जाता है, कभी साउंड अच्छा नहीं आता है। तो उससे मुझे इतना परफेक्टली नहीं पता चल पाता है कि कौन किस लेवल पे किसका कितना अच्छा बज रहा है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिकॉर्ड 30 सेकंड और एटलीस्ट 30 सेकंड टू 1 minute वीडियो and to play slow beat, so I got to know how at which level और कहाँ तक आप लोग सीख चुके, कहाँ पर पहुँच चुके। ठीक है, I will waiting for your video. So we'll end the session now. Thank you so much for joining the session. All glories to Samal devotees, Hare Krishna. All glories to Samal devotees, Hare Krishna. All glories to Samal devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga, Hare Krishna, Hare Bol. Thanks so much. प्रभु जी, वीडियो ग्रुप पे शेयर थैंक करना यू है कि प्रभु जी, आपको हरे पर्सनली कृष्ण। कर सकते हैं? Yes, yes, yes. वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करना है कि आपको पर्सनली शेयर कर सकते हैं? Depends on you. अगर आप
ग्रुप में हैंग करना अच्छी बात है, पर्सनली भी ठीक है, मतलब मुझे वीडियो मिलनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, मैं तो मेरे पास प्रभु जी वीडियो इतना आनी घटिया चाहिए। बजाती ग्रुप में, तो आई डोंट थिंक कि मैं सेंड कर पाऊंगी। नहीं, घटिया या अच्छी वाली बात नहीं है, आप ट्राई कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, वो हमको नहीं हो रहा, वो अप्रिशिएट थर्ड पे करना हो चाहिए। ही नहीं रहा, इतना अच्छे से वाइब्रेशन नहीं हो रहा है थर्ड पे। वो धीरे धीरे होगा माता जी, ठीक है, अभी सिर्फ एक ही वीक हुआ है। इफ आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे स्लो बीट सीखने में एटलीस्ट 3 हफ्ते का टाइम लगा था। सो हाउ कैन यू estimate yourself that you can learn this in 1 week by practicing that just 10 to 15 minutes? I personally practice at least 40 to 50 minutes, at least 40 to 50 minutes. That's how I got to learn this. ठीक है, और 2-3 वीक तो एटलीस्ट 2-3 वीक तो लगेंगे, और ये फास्ट फीड में एटलीस्ट आपको मोर देन 2 मंथ लगेंगे। ठीक है, तो हमको सीखना है, ट्राई करना है। मैं आपको सिर्फ एस्टिमेट बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे फास्ट फीट में। अगर आप ज़्यादा देर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन यू, आप शायद 1 महीने भी सीख जाए, शायद आप 2-3 वीक में ही सीख जाए। डिपेंड्स ऑन, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा और आपकी कॉन्शियस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे बजा रहे ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हैं। ओके, हरे कृष्ण। सो दिस